lines and angles. Lines and angles. That's very important. You must, if you do not understand angles, you will not be able to understand triangles and other measures, polygons, etc. Because you know the polygons can be also shown that they are made of triangles. So we will be spending a lot of time on lines and angles. So what is it? First of all, let us define what is an angle, or let us say what is angle. For make an angle, you need two lines. Let us say two lines. These lines are called arm, A-R-M-S, arms of the angle. Arms of the angle. Okay, this one is arms of the angle, this is arms of the angle. This one is called the vertex. Okay, now you will see that we are also opening up this line. Let us say this is OP and let us say this is Q. So we are opening up OQ in which direction? In anti-clockwise direction. What is meant by anti-clockwise? आप अगर एक घड़ी को देखो, if you see a watch, इसका 12 होता है यहाँ पे and 6 होता है यहाँ पे. This is the way it goes. And then 1, 2, 3, 4, 5, and then यहाँ पे होगा 9, then 10, 11, 12, ऐसा करके ये होता है. When you go in this direction, this is known as clockwise. Clock, जिससे clockwise, clock जैसे घूमता है, इसको कहते हैं clockwise. अगर मैं उल्टा तरफ जाता हूँ, मतलब ऐसा जाता हूँ, तो ये होगा एंटी, इसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज. सो ये जो हमारा मेजरमेंट होता है, इसके एंगल को आई एम ऑलवेज गोइंग, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये हमको समझ में आया. आप बोल सकते हैं हम इस तरफ क्यों नहीं जा सकते हैं? हम जरूर जा सकते हैं, वहां पे भी एंगल फॉर्म होगा. But the convention is that for measurements, always we are going to anti-clockwise direction, and then you will know. So another very important reason why we go in this direction for measurement of angles. अभी इसमें जो angle है, इसका कोई terms and definitions है. जैसे पहले तो ये angle चलता रहे, ये angle ऐसा करके मैं इसको आगे ऐसा बढ़ा सकता हूँ. आगे बढ़ा लिया तो पहले आएगा एक ऐसा सीधा एक आ जाएगा. इसको ये इसका मेजर होता है ऑलवेज 90 डिग्री, और इसको कहते हैं राइट एंगल. RIGHT, राइट एंगल. Very important angle. We will see this one. Then we can continue on this path in a circular motion. Remember, this is circular. I am not going away tangentially or any other way. And then I will go around and come along with this line, extension of this line. I will come along and I will come here, and this arm will lie around. So this is a vertex. Let us call it O. So this will be OP, and if it comes around here R, so this will be practically a straight line. Then we call this whole angle a straight angle. STRAIGHT, straight angle. तो straight angle का measure कितना होगा? वो होगा 180 degree. ठीक है? Then again I can go around. I'll go in a circle. I'm drawing a circle like this. I'll go around in a circle. यहाँ से जब इधर तक आएगा, so this will be again a right angle. This and this both will be right angle. And इसका measure तब होगा जब यहाँ तक आ गया, तो ये हो गया 270. कैसे आया 270? 90 into 3 is equal to 270. Right? कैसे आया? यहाँ 90, यहाँ भी 90, और आप बोल सकते हो 180 प्लस 90, वो भी आपको 270 देगा. अभी फिर जब इधर से पूरा तरफ मैंने यहाँ तक पहुंच गया, मतलब
यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से मैं यहाँ के चला आया। ऐसे वो मेरी गो राउंड होता है ना, ऐसा घूमता रहता है, ऐसे जैसे चलता है, तो ये जो है देन दिस बिकम्स 360। सो इन ए सर्कुलर वे, if I go in a circular way, if I draw a circle, and if I draw a circle like this, then this whole movement, this circular movement, this movement will be 360. So ये 360 को it is being divided into 360 parts, and one part will be 1 degree. This is where this measure of angles in degrees comes from. ये हमने आपको समझ में आया? This is very important. I want you to understand this. So we started with how an angle is formed, then we showed you right angle, then we showed you a straight angle, and then I showed you how 360 is obtained. Let us see some more definitions. ये जो एंगल होता है, जो एंगल लोअर देन 90 डिग्रीज होता है, जो एंगल लोअर देन, तो ये हमने इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। मेरा ये ड्राइंग थोड़ा ग्रेट नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूं। ये इसको अगर 90 करे, जो भी एंगल लोअर देन 90 डिग्री, जो भी एंगल लोअर देन 90 डिग्री, उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जो भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मान लो ये ऐसा एक एंगल ड्रॉ किया है हमने, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और आपको तो डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल को मैंने पहले बोला, टू बी कंप्लीटनेस, ये मैं राइट एंगल यहां पे लिख लूं। और मैंने और आपको एक एंगल बोला, वो है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। सो ये 4 डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अभी और भी एक एंगल है, मान लो इसको मैं अभी मिटा देता हूं क्योंकि इसका पर्पस अभी सॉल्व हो गया। तो अभी इसको करते हैं क्या, अगर हम 2 एंगल है, मान लीजिए एक एंगल ऐसा मैंने ड्रॉ किया, और इसके साथ मैं और एक एंगल ड्रॉ करता हूं, ऐसा करके और एक एंगल ड्रॉ करता हूं। तो ये दोनों एंगल जो है, अगेन इसको मार्क करते हैं, ये बोलने की जगह में इसको ऐसा करते हैं, OPQ एंड R। ये दोनों एंगल को हम क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये जो एडजेसेंट एंगल्स है, इनका क्या हैसियत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? इनका एक ही कॉमन आर्म है। ये जो आर्म है, दिस इज कॉमन टू बोथ द एंगल्स, कॉमन टू बोथ द एंगल्स। ये आपको समझ ये ना, और दीज आर नॉन कॉमन। ये और इसका जो इधर वाला है, दिस वन, दे आर कॉल्ड नॉन कॉमन। नॉन क्योंकि वो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स। और आप देखने, टू बी एन एडजेसेंट एंगल, दिस इज अ रिक्वायरमेंट that both the non common, तो इसमें ये जो इसमें 2 नॉन कॉमन आर्म हुआ, एक ये, this is 1 and this is 2. So those 2 non common arms would be on both sides of the common arm, on both sides, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, तभी आप इसको एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एडजेसेंट एंगल का पूरा ये जो नॉन कॉमन, वन ऑफ दिस नॉन कॉमन आर्म्स कम्स आउट इन ए लाइन, इसको ऐसे एक लाइन में आ जाता है, सीधा आके ये इधर से आके इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये लाइन 2 एंगल बनी, ये एंगल बनी और ये एंगल बनी।
इसको कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ सॉक्स, माई स्पेक्टेकल्स, और इसका सबका पेयर मतलब दो। सो दो एंगल, और बिकॉज एक लाइन फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। आपको सो एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट एंगल के साथ आपको लीनियर पेयर भी है। और एक दोनों करते हैं, मान लीजिए ये दोनों एंगल मिलके एक, ये हटा के ये दोनों, मैं सीधा आना चाहिए, सीधा नहीं आ रहा है तो मैं नीचे से उठाता हूं तो ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल इधर से आके इधर इसके साथ मिल जाता है, और दोनों मिलके एक राइट एंगल करते हैं, तो इसका भी एक नाम है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दोनों एंगल मिलके क्या होगा, देयर सम विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको समझ में आना चाहिए। सो वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर एंड हाउ डिफरेंट थिंग्स है। अभी मान लो ये जो एंगल, इधर वाला एंगल, दोनों 90 होके जाने के जगह में ये इधर में आके गिरता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। मैं अभी इधर में 2 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री एंगल। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है बिटवीन सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर? लीनियर पेयर उसमें भी तो 180, सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर में भी दैट इज ऑल्सो 180। सो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, लीनियर पेयर हैज टू बी एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर्स have to be adjacent angle। ये आप समझ में रखो, adjacent angles। Whereas supplementary angle need not be, कहीं से कहीं दोनों का ऐड होके अगर 180 डिग्री हो जाता है, एक एंगल हो सकता है यहाँ पे है और एक एंगल मान लो दूसरा किसी जगह पे है, इसके इधर में ये एक एंगल और एक एंगल है, दोनों मिला के अगर 180 हो जाता है तो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। सो दे डीड नॉट टू बी एडजस्टेड। सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड whatever is required for angles. Secondly, what now I want to pick up this other part of it, which is called lines. Lines तो हमने यूक्लिडियन एक्सियम से हमको लाइन क्या है मालूम ही है, तो हम अभी देखते हैं ये लाइन लेके हम इसका फर्दर क्या करते हैं। अगर मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन ये मान लो लाइन M, इसको हम M और इसको L कहते हैं। अगर इन दोनों का this perpendicular distance always remains constant, so this is perpendicular distance, अगर ये perpendicular distance always constant रहता है तो ये दोनों लाइन के हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कोई किसी जगह में बोलता है पैरेलल लाइंस डू नॉट मीट एट इंफिनिटी, बट दे कैन कम क्लोजर। ऐसा नहीं है मान लो ये लाइन ऐसा है कि ऐसे ही चलते चलते ऐसे ही चल गया, ऐसा नहीं है। इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये पैरेलल लाइन का हमने डेफिनेशन दिया। तो अच्छा, ये पैरेलल लाइन लेके क्या करेंगे हम? क्या फायदा है? बहुत फायदा है। रेल लाइंस दे आर पैरेलल लाइंस, रोड्स दे आर पैरेलल लाइंस, इसको सब पैरेलल लाइंस करना है। मान लो रेलवे लाइन आस्ते आस्ते जाके कहीं ये हो गया तो ट्रेन लाइन से निकल जाएगा। सो पैरेलल लाइंस हैज दिस थिंग। पैरेलल लाइंस का और क्या डेफिनेशंस होता है? पैरेलल लाइंस को एक लाइन हम खींचे,
दोनों को कट करना है, एक को नहीं दोनों को, और उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, मान लो इसको हम ए बी बोल के नाम देते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा ही होना है, मैं राइट हैंडेड हूं इसलिए ऐसा किया है, जो लेफ्ट हैंडेड है वो ऐसा भी ड्रॉ कर सकता है, तो आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। द रिक्वायरमेंट इज दिस, आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। द रिक्वायरमेंट क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन को कट होना है, और ये दोनों पैरेलल लाइन को कट होने से आपको वेरियस प्रॉपर्टीज आ जाता है। तो ठीक है, चलो हम इसको हटा के एक ही इससे ही ले लेते हैं, इस वाले से ही काम लेते हैं। तो अगर आप देखोगे देयर आर फॉर्मिंग लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। रिमेंबर, मैंने जैसे एंगल करते हुए भी और एक वे से एंगल हो सकता है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ ए इंटरसेक्ट करता है, यहां पे भी एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये सब एंगल बन रहा है, और दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट एंगल। इनको क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, दे आर इक्वल, इट कैन बी प्रूवन। हम यहाँ पे प्रूफ में नहीं जाएंगे, बट दे आर बी प्रूवन दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कितना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना, ये और ये। अरे भाई, ये वर्टिकल है, समझ में आता है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको घुमा दूं तो ये ऊपर में वर्टिकल हो जाएगा। तो इसलिए ये साइड हो या ये साइड हो, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोला दिया जाता है, आर इक्वल। अच्छा, यहां पे भी दो चार चीज है जो आपको समझ में और याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, ये आप देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इसको बोलते हैं इंटीरियर, और इसको आउटसाइड हो गया एक्सटीरियर। ठीक है, तो हम जब इंटीरियर बोलेंगे, अभी देखो इसमें से क्या होगा। पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग है, पहला है यहां पे जो एंगल बनेगी, ये जो एंगल बनी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन, इसका ये एंगल जो है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? बिकॉज दे आर सिमिलर इन नेचर। जैसे हम बोलते हैं हिज ऑथोरिटी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला उसको हिसाब से उसको अथॉरिटी दिया हुआ है, तो दैट इज विल शो दैट कॉरस्पॉन्डेंस। सो इसका कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर ये है और ये लाइन के ऊपर है। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। तो हम ऐसा लिखते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। वाई? दे आर कॉल्ड corresponding angles. They are called corresponding angles. ये हमको समझ में आया। और देखिए, अगर मैं इसको दोनों साइड में डिवाइड करूं, अगर इसको मैं बोलता हूं RHS और इस साइड को मैं बोलता हूं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, मेरे तरफ से लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको फेस कर रहा हूं ये फिगर को, सो मेरा जो राइट हैंड साइड है उसको मैं वो RHS होगा, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड उसको RHS होगा। ये दोनों एंगल इज ऑन द सेम साइड, बोथ आर शुड बी ऑन द सेम साइड, तभी आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का आपको डेफिनेशन आप बोल सकते हो। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों ये बाहर की तरफ है, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसको हम क्या नाम दें? ये हम नाम देते हैं 3 और 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? अभी हम एक थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे, इधर का सो और 2 होगा, ये वाला जो एंगल होगा
और ये वाला जो एंगल होगा वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही होगा आपको। तो आपको ये और इसके साथ इसको, तो आपको इसके चारों तरफ आपको खाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही नजर दे रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज देखिए, ये दोनों और ये वाला और ये वाला, दे आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी और ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक चीज जो रही है वो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, मिटा के आप लोगों को इसको बता रहा हूं इसको, बिकॉज देन इससे क्लैरिटी दिखाई देगा, अदरवाइज दिस होल थिंग विल बिकम कम्बरसम। बट इसको ऐसा दिखाना जरूरी था ताकि आप इसका स्पेशल रिलेशनशिप आपको मालूम पड़े। तो यहां से देखते हैं और फर्दर इसको थोड़ा ये कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़े। इधर का ये जो दोनों एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का अगर एडिशन करें आप, सो इफ यू ऐड नंबर 1 and number 2, if you add angle number 1 and angle number 2, then it will be 180 degree, and this is known as supplementary angle, supplementary angle, और वो क्या होगा 180 डिग्री। ये आपको समझ में आया? बट दे आर नॉट लीनियर पेयर्स, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, but they are 180. So this is one of the major differences about this. On these things I think I have covered all that need to be covered. एक छोड़ के और एक वो क्या एंगल है, that this angle जो हमने यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, they are also equal. They are called alternate interior angle. तो आपको all angle का all type of definitions सब कुछ मैंने has been cleared. कहाँ पे होगा the differences of these things. Now I will take a little bit of time to do one example जो आपको देखने में और समझने में, and this I will pick it up from the book, from this mathematics book of that has been prescribed for class 9 students. तो हम अगर उसको ले लेते हैं तो आपको उधर से दिखाई पड़ेगा कि we'll take up one of these. अच्छा, अभी हम किसकी बात कर रहे थे? पैरेलल लाइन की बात कर रहे थे। पैरेलल लाइन में और एक एक्सियम है, और ये है जो मैं आप अभी इसमें कंटिन्यूएशन में बोलने नहीं है, मैंने सोचा उसको बाद में बताता हूँ कि इफ यू हैव 3 लाइन्स 1 2 3, ये मान लो L M N, if L is parallel, पैरेलल लाइन का हर बार लिखने की जगह में हम दोनों लाइन ऐसा डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हम कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर दिखाने से आपको ऐसा करके दिखा दे तो ये है साइन लैंग्वेज चलता है इतना। डॉक्टर्स कितना साइन लैंग्वेज लिखते हैं, वो कभी विथ नहीं लिखते हैं, ऐसा करके ये कर दिया तो उसका मतलब विथ हो गया। तो हमारा साइंस में जो है ना, तो हमारा जो मैथमेटिशियन है, वी ऑल्सो यूज ए लॉट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक दिस। सो हमारे अब अगर इसको ऐसा करना है तो हम इसको ऐसा करके दिखा सकते हैं।
तो यहाँ पे जो इसलिए मैंने 3 लाइन ड्रॉ किया, से L is parallel to M and L is parallel to N. Then M is parallel to N. ये चलता है, this is some of these are common sense. अगर हम आपको करते करते अरे ये तो होना ही था, बट फिर भी these statements are required because many times वो लोग पूछते हैं आपको कैसे मालूम, तो then you say there is always an axiom that these three are will remain parallel. तो हम अभी यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें दिखाते हैं, ये मान लीजिए there is a like this, देखते हैं हम ये कर सकते हैं या नहीं। उसमें 2 लाइन है, एक है PQ और दूसरा है 2 पैरेलल है। RN is given, even though I have not drawn exactly parallel, but it is given PQ is parallel to RS. और क्या दिया, यहाँ पे PQ के ऊपर एक पॉइंट लिया, इसको यहाँ तक लेके आया और M तक, और इसको यहाँ से ऐसा ज्वाइन किया, तो ये ले गया पॉइंट X, ये हो गया पॉइंट Y, यहाँ पे एक M हो गया, और ये क्या मांग रहे हैं, ये बोल रहा है फाइंड XMY। XMY मतलब ये वाला एंगल को तुम ढूंढो, और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 135 दिया हुआ है, और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 40। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने सीखा है, हम एक चीज कर सकते हैं जो किताब में करके दिया है कि I will draw a line parallel to PQ. ड्रॉ कर लिया लाइन, अगर ये parallel to PQ है, that means it is also, so I have drawn a line M which is parallel to say PQ, then it is also parallel to RS because RS, PQ and RS are parallel. So हो गया ना, अभी हमने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन। अगर आपने ये किया है तो ये आएगा 40, Why? इट्स ऑल्टरनेट एंगल। ये अगर 135 होगा तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस 135, तो कितना होगा 45, राइट। तो ये हो गया 45। तो ये तो इसका वही मेथड यहाँ पे जो किया है वो कर दिया 45। तो दोनों मिलके क्या हो गया, दोनों मिलके ये जो हमको जो फाइंड आउट करना है 45 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 85। ये आपको समझ में आया, ये एप्लीकेशन के बारे में। ये अगर एप्लीकेशन के बारे में आपको समझ में आया तो आपको ये चीज सब कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अच्छा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बार बार नहीं पढ़े, इंटीरियर एंगल्स बोलने, ऑल्टरनेट एंगल बोलने से भी मालूम हो जाता है। तो आपको इसका एक एप्लीकेशन के मालूम है, दिस इज ऑल्सो हैज बीन सॉल्व्ड इन द बुक, सो आई थॉट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू फर्दर। और एक ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एक एग्जाम्पल ऐसा है, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बोलते हैं वही अगेन तो पैरेलल लाइन है पी क्यू, ये है पी, दिस इज पी क्यू और आर एस। एक ट्रांसवर्सल एडी ले लिया, एडी, और इसमें जो एंगल बनती है ये वाला क्या एंगल, ये इसके साथ सप्लीमेंट्री है। तो ये वाला जो एंगल है इसको ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर कहां जा रहा है, ये के कट करता है बी में, इसको कट करता है सी में। तो ये है बीई, और ये वाला और एक ऐसा आपको बाइसेक्टर लिया, और ये वाला है सी जी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा
such that by pair of, then prove that the two lines are parallel. हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमको प्रूव करना पड़ेगा BE is parallel to CG. ठीक है? What is given? Two things have been given. कि this angle and this angle, they are equal because they are perpendicular bisectors, and these and these two are equal. ठीक है? और I can use, since this is parallel, so हम इसको नाम देते हैं 1 and 2 और इसको 3 and 4 दे देते हैं. So angle 1 is equal to angle 2, or angle 1 is equal to 2, or that means angle 1 is half of angle ABQ. Agreed? Similarly, यहाँ पे अगर देखो angle 3 equal to angle 4, therefore I can say angle 3 is equal to half of BC. B दोनों सी कहां से आ गया यार? ये RS होगा, है ना? BCS. So अगर और ये बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, so then this whole thing and this whole thing is equal, because we have been told that PQ is parallel to RS. अगर ये दोनों सेम है तो BCS और these are equal, so we are talking about the same equal angle. So angle 1 equal to half of angle ABQ is equal to angle 3 is equal to half of angle BCS. So that means we can now prove that these two lines are parallel. हाफ कर लो तो ये इसका alternate और इसका alternate 1 and 3 are equal. 1 and 3 equal because ABQ is equal to because ABQ is equal to BQ.